एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग. Yes. So tell me, what changes you did in your trading style after Sir, doing the course? initially what I used to do is I only used to deal in cash. So I didn't have much idea about futures and options. So what I do now is I have sufficient amount of cash stocks. So I just pledge those stock, and because very less margin is needed, and so I buy the future lot and I sell the higher calls with a higher strike price. And sometimes I feel that there is a chance that market may go down, so I buy put Okay. to do like a insurance, which I never knew earlier, that buying put and all is going to help to lessen your losses and everything. So, sir, I have earned a lot by selling calls actually, because I sell 10%, 20% higher calls. And even if you keep the money in the bank, you get like 5% annually. But by selling calls, I not investing a single penny. I make minimum 1.5% to 2% a month. So So that is 24% annually, which is good so that is on your investments, you are saying, right? on my investment. Yes, sir. Now I will just take this opportunity to like tell you. Obviously, during the course we'll do it again. But now that because you are pledging your stocks and selling the stock options, Yes, and unfortunately we have only monthly expiries in stock options. You correct. can do the Yes, sir. same thing by selling the index options every week, and you can earn that 1 to 2% every week instead of every month. Right, sir. So I will learn it from you. Yeah. But And so generally, what I do is like whenever I sell calls when only 1 week is pending, or 8 to 10 days. I right, don't sell calls in the start of the month, because there are chances that it might go up. So even if I do it at the end of the month, so actually you can say that I'm making that 1% in just less than 8 days. yes, right, Yeah. right, Sometimes I make 0.75% also. I check few stocks in which I can easily make 0.75%, which is falling in a falling trend. So all those like things you have taught. So I use those methods and then I sell calls. right, right, right. So how difference it has made, like अभी कैसा लग रहा है आपको पहले के कंपैरिजन में अभी? सर बहुत अच्छा लगता है ना, मतलब पहले तो सिर्फ कैश में ही लेते थे। हाँ, तो अभी इतना यू फील गुड सर। एक तो फ्यूचर में अच्छा पैसा मिल जाता है, थोड़ा ही पैसा इन्वेस्ट करने से 50-100 रुपए भी ऊपर नीचे होता है तो वो बहुत अच्छा मार्जिन, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। और ये मार्जिन कम करने के लिए, मार्जिन कम यूज हो इसलिए हम लोग कॉल बेच देते हैं और नीचे पुट ले लेते हैं, तो और हम लोग ट्रेड कर पाते हैं। राइट, क्योंकि अगर हम सिर्फ फ्यूचर लेते हैं तो मार्जिन ज्यादा यूज होता है। कॉल बेचा और पुट खरीदा नीचे, तो मार्जिन मार्जिन कम. कम यूज हो जाता है, तो और ट्रेड्स कर पाते हैं। तो ये सब का जानकारी नहीं था ना सर पहले। यस सर। तो आप थैंक यू। आप आप अकेले कर रहे हो कि जयश्री मैम भी कर रही है? नहीं, मेरी सिस्टर, हम लोग दोनों मिलके करते हैं दोनों सर। हम लोग मिलके. अगले ही दिन स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। मुझे हाँ। मुझे याद है ना कि जब शुरू में आपने जब शुरू किया था तब दीपक नाइट्राइट में आपने बहुत मतलब महीने की शुरुआत में ही कॉल ऑप्शन बेच दिया, है ना? राइट सर, जब राइट सर। एक्सपीरियंस नहीं था तो एकदम शुरू में ही आपने कर दिया, और करेक्ट, फिर करेक्ट, वो उड़ने लगा तो थोड़ा सा टेंशन आ गया, करेक्ट, करेक्ट। राइट? दैट वाज माय लर्निंग कर्व। यस, कि ये कॉल ऑप्शन जो है वो स्टार्ट में नहीं बेचना है। लास्ट का 8 दिन या 10 दिन है, या अगर आपको एकदम श्योरिटी है कि मार्केट एकदम रिवर्स ट्रेंड, मतलब नीचे ही गिर रहा है, बेरिश ट्रेंड में, तो आप स्टार्टिंग में बेच सकते हो, तो आपको और अच्छा पैसा कमाने मिलेगा। बट सर इतना श्योरिटी कोई नहीं ले सकता है, मुझे नहीं लगता है सर। और हाँ पुट ऑप्शन क्यों नहीं बेचते फिर आप? सर, मैंने ना ये मंथ में क्या एक्सपीरियंस किया एक्चुअली, नॉट ये मंथ, लास्ट टू लास्ट मंथ, आई थिंक इट वाज इन दिसंबर। मैंने ना सर पुट खरीदा था सर, वो हम्म, इंश्योरेंस के इसके। हम्म. लेकिन मेरा एक्चुअली क्या हुआ सर, दिसंबर में मैंने जो कॉल बेचा था तो उसमें मुझे अर्निंग हो रही थी। लेकिन मैंने पुट खरीदा था ना, तो वो मेरा एक्चुअली इंश्योरेंस कॉस्ट हो गया, क्योंकि मार्केट फिर वापस गिरा. बढ़ने लगा सर। ओके. थोड़ा सा मतलब
तो मेरा पुट का पूरा पैसा चला गया, तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, बट स्टिल मतलब देयर वाज नो लॉस, सो इट वाज गुड. But it is always like selling call is safer as compared to selling. I'm talking selling put options, because when the markets fall, as we have Yeah. observed in last Correct. week, Yes. they fall drastically, and selling put can be lethal. Yes, right, sir. So और क्या बताएंगे आप सर मेरे को और एक हमारे? चीज याद है सर. हाँ, आप सर जनरली ना, जब भी आप देखो, अभी भी आप सिखाएंगे ना, तो आप ऐसे कहेंगे कि सेल सेल जब भी हम कॉल सेल करते हैं, तो अनलिमिटेड लॉस आप बताओगे, करेक्ट सर? हाँ. व्हेन वी बाय एनी ऑप्शन, तो अपना लॉस लिमिटेड है, करेक्ट. हाँ. लेकिन हम लोग जब भी कोई भी चीज सेल करते हैं, मतलब कॉल सेल करते हैं, तो अनलिमिटेड लॉस होता है. लेकिन सर हमें अनलिमिटेड लॉस जैसा काम करना ही नहीं है ना. हम बहुत ऊपर का कॉल बेचेंगे, भले थोड़ा पैसा मिलेगा, लेकिन वो श्योर शॉट है. तो वो अनलिमिटेड लॉस सुन के बहुत डर लगता था, बट उसको स्ट्रैटेजिकली अच्छे से यूज किया, तो आप यू कैन मेक मनी फॉर श्योर. So the focus is that not to earn huge money, may it be small money but consistent. करेक्ट सर, करेक्ट. स्मॉल मनी हर महीने हो गया है सर. इनफैक्ट हम लोग क्या सोच रहे थे कि ये जो मेरा स्टॉक्स जो मैंने प्लेज किया है ना, तो अगर समझो मैं एक छोटा सा प्रॉपर्टी लेती हूँ, ठीक है, तो मुझे ईएमआई भरना पड़ेगा. आप कोई भी जगह लेते हो तो होम लोन जैसे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरा ईएमआई निकल जाएगा इससे. अच्छा. क्योंकि वो मेरे को शॉर्ट शॉर्ट मैंने, सर मैं आपको मेरा दिखा सकती हूँ नेक्स्ट टाइम, कि मैंने एवरी मंथ कितने कॉल बेचे हैं और मुझे कितना अमाउंट मिल ही जाता है. वो लास्ट 8 दिन में ही शांति से मैं ढूंढती हूँ सर ऐसा स्टॉक जो मुझे एटलीस्ट 8 दिन में 1% या हाफ परसेंट या 0.75% दे ही देता है सर. एंड वन मोर थिंग सर, जैसे आपने बोला था कि बहुत मैं एक ही स्टॉक में ना सारा नहीं बेच देती हूँ. आई सिलेक्ट डिफरेंट सेक्टर्स, कि अगर समझो मैंने 10 स्टॉक बेचे हैं, तो कहीं एक में मेरा बैड लक हो जाएगा कि वो मेरा सेल प्राइस से ऊपर चला जाएगा, बाकी मेरे को 9 स्टॉक तो कमा के देंगे. So you basically divide your risk. यस यस. So अगर dividing समझो your बैंकिंग चल गया सर, बैंकिंग अगर चल गया तो केमिकल कमा के देगा, ऐसा मतलब कोई एक. लेकिन सर लकीली ऐसा हुआ नहीं है. एक ही बार हुआ था सर मेरा इंटरग्लोब में, कि वो सोचा था उससे ज्यादा ही भाग गया, और मैंने इंटरग्लोब के कॉल बेचे थे. बट मैं यही स्ट्रैटेजी से करती हूँ कि मैंने सब अलग अलग स्टॉक्स ये किए थे, तो मुझे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, फिर सर प्रॉफिट ही था. तो अभी इस बार जो हम लोग कोर्स में कवर करेंगे ना, उसमें जब ऐसे सिचुएशंस में, जैसे अभी इंडिगो के बारे में ना, कोइंसिडेंटली अभी हम लोग इंडिगो का ही एग्जांपल लिया था, तो अच्छा. यस. तो कोइंसिडेंटली अभी इस बार ना जो जो थोड़ा बहुत क्योंकि देखो, विद टाइम आई एम आल्सो लर्निंग न्यू थिंग्स, और रेदर आई एम आल्सो enhancing the course content, okay, to give more clarifications to how to use all these tools, because I have now started considering these call options, put options as tools. Okay. तो इस टूल्स को कैसे यूज करना है? अभी जैसे आपने बोला कि आपने इंटरग्लोब में अटक गए थे कॉल ऑप्शन बेच के, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा टूट गया था, राइट? हाँ सर. तो when you play with options, there is always, and for you I am sure that there is always a chance that you can come back. मतलब बोलते ना कि हारते हुए मैच को आप वापस जीत के तरफ लेके जा सकते. अच्छा. तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. Okay, that now I have learned. So whatever I Okay, have learned, इसके लिए I am very happy that you have joined again. यस सर. मुझे और मेरा जो स्किल्स है ना उसको पॉलिश करना था सर. तो वो जो कैलकुलेशंस है ना, उसको बोलते हैं कि एडजस्टमेंट्स, हाउ टू एडजस्ट योर पोजीशंस, है ना? कि मैंने एक पोजीशन लिया है, अभी मुझे उसमें लॉस हो रहा है, तो अभी मुझे उसको एडजस्ट करना, तो कैसे एडजस्ट करना है ना, सो दैट एटलीस्ट आई विल कम बैक टू नो लॉस नो प्रॉफिट एटलीस्ट. बट इनफैक्ट वो स्ट्रेटजीज आप अगर, अब जैसे अभी आपने किया है अभी तक, कि जो सीखा है आपने उसके ऊपर मेहनत करके यू हैव स्टार्टेड अप्लाइंग एंड यू आर सक्सेसफुली अप्लाइंग दो स्ट्रेटजीज. या सर सॉरी, मैं इसके ऊपर एक चीज बोलूंगी. हम लोग जब ये दोनों सिस्टर्स सीखते थे, तो हम लोग वही सोचते थे कि हम लोग स्टूडेंट तो है ही, लेकिन हम लोग बिजनेस वुमेन है.
तो इसका अपॉर्चुनिटी लेके अपने को अपने मतलब ये पैसे का फायदा कैसे करने का है ना, वो मेन अपने को करना। खाली नोट्स ही मत बनाओ। आप सब सर जब भी सिखाते थे ना, हम लोग काफी बार उसी दिन ट्रेड कर लेते थे। अच्छा। हाँ सर। लेकिन वो हाँ आपके लिए पॉसिबल है ना, लेकिन मैं नहीं रेकमेंड करता हूँ सबको। तो मैं हाँ अच्छा, मैं उनको सबको क्या रेकमेंड करता हूँ कि जो हाँ। डेमो ट्रेडिंग होता है ना, जैसे शेयर अपना राइट राइट। इसमें है, ऑलमोस्ट ऑल द ब्रोकर्स हैव ए डेमो अकाउंट नाउ, और इवन यस लाइक इफ यू हैव एन एक्सेस टू सेंसिबल या ऑप्स्ट्रा जो है, उसमें भी डेमो ट्रेड्स यू कैन प्लेस एंड यू कैन सी द एंड रिजल्ट्स आफ्टर द एक्सपायर, कि मैंने ये सर। स्ट्रेटेजी अप्लाई किया था, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। रियल अकाउंट, यू डिड इट इन रियल अकाउंट, यस बट आई विल नॉट रिकमेंड अदर्स टू डू इट इन रियल अकाउंट। मतलब यस जब सर। तक कॉन्फिडेंस नहीं आए तब तक, है ना। ठीक। तो कंसिस्टेंटली Exactly. आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना करोगे, आपको कंसिस्टेंट आपके अकाउंट में, डेमो अकाउंट में प्रॉफिट दिखेगा। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग दो स्ट्रेटेजीज इन डेमो Yes. अकाउंट। एंड ये ऑप्शंस एडजस्टमेंट जो है ना, that is what you I will be happy to teach you in this batch you have joined, okay? Yes. Yes. तो Okay. let उसके बाद में अगर कभी ऐसे सिचुएशंस में अपने आप को अगर आपने पाया कि Hmm. मैं पोजीशन लिया है और लॉस में जा रही हूँ, तो हाउ Hmm. हाउ कैन यू एडजस्ट योर पोजीशंस और ऐड फ्यू मोर पोजीशंस, ऐड और क्लोज फ्यू पोजीशंस टू मेक Yes. श्योर दैट योर लॉसेस आर मिनिमाइज्ड। और Correct. Sir. आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट आप लॉसेस मिनिमाइज करने का छोड़ के आप उसमें से भी कैसे जीत का झंडा गाड़ के आओगे, ये तो आप Yes, sir. करोगे। Definitely. Yes, sir. ठीक है, Yes, definitely. तो वो एडजस्टमेंट्स हम लोग इस बैच में एडजस्टमेंट्स के ऊपर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली देखो ऐसा नहीं था कि ये मुझे पता नहीं था, बट शायद मेरे सिखाने में वो थोड़ी सी खामी रह गई। ठीक है, अच्छा। एंड हाँ, एज यू ऑल नो, मैंने आपको भी बताया कि वो वहां पर अभी सिखाता हूँ यूएसए कनाडा में। तो वहां अच्छा। पर मेरा मॉक वगैरह पूरा होने के बाद में they insisted to teach option adjustments also। ठीक Okay, है, sir. Good. तो Okay. मैंने बोला यार एडजस्टमेंट ऐसा, मतलब क्या बोलते हैं ना, सेपरेटली मैंने कभी एडजस्टमेंट के बारे में सोचा नहीं था। फिर मैं Hmm. मजबूर हो गया कि ऑप्शंस एडजस्टमेंट सिखाना है, तो फिर कैसे सिखाऊंगा, तो फिर वहां पर सिखाऊंगा, तो फिर इधर के बच्चे लोग को मैं क्यों ना इंसाफी करूँ, इधर भी सिखाऊंगा। Yes. So that is what you will understand, how to adjust your positions, and even if it is in futures or in cash. So as it is like now you have started using options as an insurance, okay? Yes. Hmm. तो जब अभी आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करोगे, तो Hmm. ऑप्शंस फिर वो कॉल ऑप्शन हो, पुट ऑप्शन हो, उसको यूज करके, और इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव से मैं बताऊंगा कि व्हाट Correct. इंस्टीट्यूशंस डू, Yes. है ना। Yes, sir. मेरा Yes. पूरा कोर्स तो ऐसा ही है कि Yeah. इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, तो हम लोग को वी Hmm. हैव टू जस्ट कॉपी व्हाट इंस्टीट्यूशंस, Yes. and that is definitely going to help you, Yes, whatever sir. new things that I'm going to, same Yes. strategies, everything same, but एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग एडिशनल उसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन या सोच में थोड़ा सा फर्क करना है, और वो हमको सीखना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। आई एम Sir. श्योर लास्ट टाइम भी जब आपने बैच ज्वाइन किया था, उसमें नेहा करके कैंडिडेट, क्या नाम था उसका? हाँ, आई थिंक ने भाविक भाविन था सर, भाविन भाविन। एक था, भाविन था, और एक लड़की थी शायद, उसका नेहा नाम था, राइट राइट, एकदम फ्रेशर यंग, थी सर। यस यस। हाँ, एकदम यंग। यस। तो उन लोगों को दोनों को बहुत फायदा हुआ आपके प्रेजेंस, बिकॉज आपके सवाल, आपका एक्सपीरियंस, उसके यस सर। वजह से आपने जो भी मतलब शेयरिंग किया, दे गॉट लॉट ऑफ हेल्प बिकॉज ऑफ योर यस। प्रेजेंस। थैंक यू। तो वही हेल्प अभी इन सब बच्चे लोग को भी मिले, एंड दैट डेफिनेटली इज व्हाई सर। आई एम हैप्पी फॉर ऑल दीज गाइस दैट सर यू सॉरी, हैव मुझे जॉइंड। एक बार याद है, एक बार कुछ सिखा रहे थे और हाँ नेहा ही, मतलब उसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन नेहा, तो मुझ आप सिखा रहे तो मेरे को समझा कि उसको नहीं समझा है, तो मैंने हाँ आपको बोला सर 1 मिनट मीटिंग आप ये करिए। हाँ। मतलब मुझे उसको थोड़ा, मैंने उसको थोड़ा डांट के सिखा लिया था फिर। तो एक्चुअली एक्चुअली क्या है, मैडम को पता है कि मैं डांटता नहीं हूँ, कितना भी सामने वाले कितने बार भी पूछा, तो मैडम ने मुझे बोला कि सर आप ब्रेक ले लीजिए 5 मिनट के लिए, आप हाँ। यस। जाइए, म्यूट करके हाँ। आप जाइए, मैं सिखाती हूँ उसको। तो यस सर। ओके। सो शी इज लाइक, एंड यस शी इज लाइक ए गाइडिंग लाइट। वो क्या होता है समुंदर में जो किनारे पे जो लाइट रहता है ना, शी इज लाइक दैट फॉर ऑल माय कैंडिडेट्स, थैंक and यू सर। थैंक यू सर। and थैंक not only for candidates, for me also. So I'm यू। extremely happy that she is back,
एंड जो भी अभी तक उन्होंने किया है इस बार अटेंड करने के बाद में उसमें और 2-5% का एनहांसमेंट हो जाएगा, इज Yes, व्हाट sir. आई प्रॉमिस. Yes, thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. So Thank you. we will end this session. I will stop the recording first. Yes.